and welcome to our special program, Doctors Speak. We are back once again with our medical experts, who can help us advise the right way to tackle the challenge of the COVID-19 pandemic. Remember, as you know, this is a live phone-in program. You can call us and speak to our medical experts and rectify all your queries. Our numbers are 011-233-87031. They're also flashing on the screen. The second number, 011, is the Delhi code, 23097655. You can connect with us online as well on our Facebook page and Twitter handles. You can post the questions there. Write your name and where you stay as well, so that we know where's the question coming from. I'm Shubhendu with my colleague Ritu. थैंक यू शुभेंदु। और जिस तरह से शुभेंदु ने आपको बताया ही कि ये 1 घंटे का कार्यक्रम एक लंबे समय से हमारे यहाँ चल रहा है डीडी न्यूज पर, और जो सीधे सीधे तमाम दर्शकों और डॉक्टरों के साथ का ये कार्यक्रम है। आप दोनों के ही सहयोग से इस कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन 1 घंटे तक आप इन 2 फोन लाइंस पे हमें कॉल कर सकते हैं, और खासकर कोरोना से जुड़ी जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके सवाल हैं, वो आप सीधे डॉक्टरों से उनके जवाब ले सकते हैं। हम एक बार आपको फिर से नंबर बता देते हैं जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहे हैं। 011-233-87031, 011-230-97655। तो अगले 1 घंटे यानी 2 से 3 बजे तक आप लगातार हमें कॉल करें और अपने सवालों के साथ उनके जवाब जानें। हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हैं, शुभेंदु डॉक्टर्स के बारे में भी बताएंगे। Let me introduce the guests, doctors who are joining us today. First guest, Dr. G.C. Khilnani, former HOD, Pulmonary Medicine, All India Institute of Medical Sciences. Welcome, sir, to our program. Also, Dr. S.M. Raheja, Senior Physician, GB Pant Hospital. Welcome, sir, to our program. Dr. Raheja, if I can begin with you. Yesterday, when Prime Minister was speaking to Chief Ministers of different states, he spoke about the strategy ahead, that the testing has to be increased, especially in the states where COVID-19 cases are higher, and the quarantine facility, that must be expanded. How do you look at this strategy, if you can begin the program with that thought? Is the basic principle of epidemiology to contain any of the pandemics or epidemic. So basically what we call is trace, track, test, treat and teamwork, and then do the surveillance of the contact. So basically this is, I will say, testing is the basic to know what patients are infected, and only then we can catch hold of the contacts and other patients, because as we know, almost 80% of the patients, those may be asymptomatic, or they may be having just mild symptomatic of flu-like illness, cough, cold, and they must be coming in contact with other people. If a person is asymptomatic and he is still transmitting the COVID-19 virus, and the person, if he is not tested, he or she will never know that he or she is infecting so many other people. So it has to be the cornerstone of our strategy, and beside this we have to take other measures also, like stay home, stay safe, particularly for the high risk group, and keep washing your hands, maintain that social distance, cough hygiene, throat hygiene, hand hygiene, improve your immunity, and have a good sleep, and keep yourself safe. I will still say basically now we are into the phase of unlock. So now the transmission of virus is likely to increase, because now the people will come in contact with each other, and this is the time when we have to be more cautious, more sincere, more serious. It is within ourselves to protect ourselves, protect our family, and if we can protect ourselves, our family, our community, we can protect the entire country. So it has to be the teamwork, and every individual plays an important role here. Now is the real challenge which starts for all of us to fight this COVID-19. बिल्कुल डॉक्टर रहेगा, जिस तरह से आपने बताया अनलॉक 1 के दौरान अब जिस तरह से लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, कुछ तमाम सुविधाओं की भी शुरुआत की गई है, उसके साथ चुनौती भी बड़ी है। डॉक्टर खिलानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौसम को भी देखते हुए डॉक्टर खिलानी, इस समय और जहां हम एक तरह से ये कहें कि
एक सुखद अनुभव के तौर पर इसे कहें, जो हमने लॉकडाउन के दौरान जो सख्ती की है उसका यह है कि लोगों के ठीक होने की दर अब 52.95% हो गई है। ऐसे में मौसम को भी ध्यान रखते हुए अनलॉक के दौरान भी किस तरह की सतर्कता अभी बरतनी हम सबको जरूरी है? पहले तो मैं प्लीज परमिट मी कि मैं टेस्टिंग के बारे में कुछ और बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जो रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि अगर एक व्यक्ति को कोविड है और वो उसको अगर नहीं डायग्नोज किया जाता है और वो अगर कम्युनिटी में घूमता रहता है और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करते हैं तो 1 महीने के अंदर 406 केस हो जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर उस आदमी को हम डायग्नोज ही नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन बंद कैसे करेंगे? जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स बने हैं उसका बेसिस क्या है? बेसिस यही है कि हमने उस कंटेनमेंट जोन में पेशेंट को डायग्नोज किया है और उससे हमें पता चला है। दूसरी बात यह है कि जो डायमंड प्रिंसेस एक जो वेसल थी, जो हवा जहाज था, पानी का जहाज, जिसमें एक स्टडी आई थी जो न्यू इंग्लैंड जर्नल में पब्लिश हुई थी, उसमें ये पता चला कि प्री सिम्टोमेटिक स्टेज जो होती है, मतलब सिम्टम होने से पहले पॉजिटिविटी 3 से 5 दिन पहले ही आ जाती है। अब अगर इनको पकड़ना है, वो लोग इसको पकड़ पाए क्योंकि वो लोग आइसोलेशन में थे। एक जापान में एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में रखा था और उनको बार बार टेस्ट कर रहे थे। तो ये एम्फेसाइज करता है कि टेस्टिंग का क्या वैल्यू है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि जब अनलॉक हुआ है, ऑफिसेस खुल गए हैं, ऑफिसेस में एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर की कॉमन एयर होती है। इस गर्मी जब 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बिना एयर कंडीशन के आप रह नहीं सकते हैं। एक आपने टीवी पे भी देखा होगा, जहां भी कोई छोटी मोटी कांग्रीगेशन होती है, 20-30% लोग ऐसे होते हैं जो मास्क को मुंह तो ढक लेते हैं लेकिन नाक को उससे बाहर रखते हैं। अब ये बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। ऐसा मेरी पर्सनल नॉलेज है कि कई जगह ऐसा हुआ कि 5 जने साथ खाना खा रहे थे, उस समय मास्क हटा लिया, एक पॉजिटिव था, अगले 3 दिन में 5 पॉजिटिव हो, डेथ्स भी हो जाती है। तो ये एक अभी बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लोगों के पास। भारत नंबर 1 था जब लॉकडाउन था, तो अब वो उसका नंबर पीछे जा रहा है क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं हमारे। एक खतरा है कि ऐसा ना हो कि हमारे पास अस्पताल खत्म हो जाए, हमारे पास सुविधाएं खत्म हो जाए। अगर उससे बचना है तो हम सबको सतर्क होना पड़ेगा। मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है कि कौन से मेजर्स हैं, ये लाखों। तो इसलिए जो है ना, सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ डॉक्टर्स की, नर्सेस की, मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। हर सड़क चलते व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप पर संयम रखे। अगर जरूरी नहीं है किसी से मिलना तो ना मिले। अगर कोई गैदरिंग जरूरी नहीं है, जब सरकार कह रही है कि फ्यूनरल पे भी 20 जने से ज्यादा नहीं हो सकते, इससे ज्यादा क्या इंडिकेशन हो सकता है कि आपको आपस में मिलना जुलना बिल्कुल बंद करना है। तो आपको एक पर्सनल लॉकडाउन जो है वो इम्पोज करना है, सिर्फ जरूरी सर्विसेज के लिए आपको जाना चाहिए। धन्यवाद जी। कीर्ति, our first caller is with us from Lucknow. Hello Kirti, welcome to the program. मेरी एज 45 ईयर्स है जी। और मैं मतलब मुझे जुवेनाइल अस्थमा, एक तरह से जब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे अस्थमेटिक प्रॉब्लम, और आज से 2-3 साल पहले तक मतलब मुझे ओरल स्टेरॉइड पर भी डिपेंड रहना पड़ता था। तो कई बार ऐसा होता है एकदम से मेरा दम घुटने लगता है, जैसे सांस नहीं आती और सफोकेशन सा लगता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस समय में मुझे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? एक तो ये मेरा प्रश्न, और दूसरा ये है कि जैसे आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ वेंडर दूध लेकर आते हैं या सब्जी लेकर आते हैं तो लगभग 1-1.5 फीट से हम हाथ फैलाकर उनसे सामान लेते हैं, और उनके अगर मास्क वगैरह लगे रहते तो क्या फिर भी हमें अपने फेस मास्क और ये सब चीजें यूज करनी चाहिए? जी, थैंक यू कीर्ति फॉर योर क्वेश्चन। ऋतु, एक और शायद जी, हमारे साथ मोहित भी जुड़ गए हैं गुड़गांव से। जी मोहित, आप अपना भी सवाल पूछ लें। मोहित, आप अपना सवाल पूछ लें। मोहित हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं। हाँ मैम, मेरा नाम मोहित भारद्वाज है। मेरे पिताश्री का नाम मिस्टर सत्यनारायण शर्मा है। उनको अभी कोविड-19 हाल ही में पॉजिटिव पाए गए हैं।
और फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम सबने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन मिली है कि अगर आपको कोई सिम्टोमेटिक नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है टेस्ट कराने की। फिलहाल हम अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि इसका कुछ प्रभाव हम पे पड़ सकता है क्या नहीं, क्योंकि हम भी उनके संपर्क में रहे हैं कुछ दिन। जी मोहित, डॉक्टर खिलनानी, आप हम अभी बेसिकली इन दोनों कॉलर्स पे जाने से पहले डॉक्टर खिलनानी, आपने जहां टेस्टिंग की बात की थी और कंटेनमेंट जोन की भी आपने बात की, अब इनका ये जो कॉलर थे मोहित, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी कोविड-19 पॉजिटिव हैं, ये घर के बाकी सदस्य आइसोलेशन में हैं, क्या इन्हें टेस्टिंग करानी जरूरी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मान के चलो कि आपके पिताजी को जब एडमिट कराया गया है उसके पहले आपका एक्सपोजर तो हुआ है, इसमें नेचुरल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको थोड़ी पता था कि उनको कोविड है। जब एक्सपोजर हुआ तो अब आपके पास दो चॉइस है। एक चॉइस तो ये कि आप सब लोग अपना 5 से 7 दिन के बाद जब उनको तकलीफ शुरू हुई थी तो उसके बाद एक थ्रोट स्वाब करा लें। तो वो अगर नेगेटिव आएगी तो 70% चांस है, 70%, 100% नहीं है, 70% चांस है कि वो नेगेटिव इज ट्रू नेगेटिव। लेकिन क्योंकि सिर्फ 70% चांस है और टेस्ट महंगा भी है और टेस्टिंग की लिमिटेशंस भी है, तो आपको जो है वो क्वारंटाइन या आइसोलेशन तो करना ही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि 14 दिन के लिए आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं तो आपको टेस्टिंग कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको गले में खराश होती है, बुखार होता है, बॉडी एक होता है, डायरिया होता है, बहुत तेज सिर दर्द होता है, तो आपको ये लक्षण है कोरोना वायरस के, तब आपको ये टेस्टिंग करानी चाहिए। मैडम इफ यू परमिट मैं उनके एस्थमा के पेशेंट को जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर खिलनानी, आप कीर्ति जी का भी सवाल का जवाब दे दें। जी कीर्ति जी, मैं समझ गया कि आपको जुवेनाइल एस्थमा है और आप 2-3 साल पहले सिस्टमिक स्टीरॉयड मतलब स्टीरॉयड टैबलेट भी ले रहे थे, और मैं सोचता हूँ कि अभी आप इनहेलर्स ले रहे होंगे जिसमें भी स्टीरॉयड्स भी होते हैं। तो इसमें स्वाभाविक है कि अस्थमा के मरीजों को बार बार एक एक्सेसरबेशन होता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो उसको डर लगता है कि ये कोरोना तो नहीं है। अब इसमें मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य बताता हूँ। एक तो ये है कि आपको किसी भी सूरत में अपने इनहेलर्स की मात्रा या फ्रीक्वेंसी कम नहीं करनी। कोई प्रमाण नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इनहेल्ड स्टीरॉयड या इनहेल्ड दवाइयां या एरोसॉल या पफ लेने से कोरोना होता है, ये बिल्कुल गलत है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको जो एस्थमा के जो एक्सेसरबेशन होते हैं, जो आपने बोला कि दम घुटता है, उसके कारण ज्यादातर ये होते हैं कि आपका किसी धूल से, किसी से एक्सपोजर हुआ है, या पॉलन से एक्सपोजर हुआ है, या फिर इमोशनल स्ट्रेस से भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसके साथ में अगर वो आपको सीवियर बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द है या बुखार होता है या गले में खराश है या डायरिया है, तो आप कोरोना सस्पेक्ट करें, तो बाकी आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि सामान आता है, दूध आता है, बिल्कुल आता है। वो मैं आपको कहूंगा कि आप पैरानॉइड हो जाए। हर चीज जो बाहर से आती है वो कोई तो उसको छूता ही है, चाहे वो पैसे हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे अखबार हो, चाहे थैला हो, चाहे दूध की थैली हो, कोई तो उसको छूता ही है। और इस समय जो भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, बचाव का सिर्फ ये तरीका है कि हर पैकेट को, हर दूध के पैकेट को आप शक की नजर से देखें। अब जैसे दूध की बात करें, आप दूध की थैली को इमीडिएटली, कई लोग उसको साबुन पानी से धो लेते हैं, या उसको आप अपने हाथ से हैंडल करके भगोनी में डाल के गर्म कर दें। एक बार दूध गर्म हुआ जी तो वो कोरोना फ्री है, लेकिन आपके हाथ संक्रमित हो सकते हैं। तो आप दूध भगोनी में डाल के इमीडिएटली अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोएं, या सैनिटाइजर के साथ। अगर घर में है तो साबुन पानी से हाथ धोना बहुत बेहतर है सैनिटाइजर यूज करने से, एज फार एज उसकी एफिशिएंसी इज कंसर्न। जी, हाइजीन इज अ क्रूशियल वे फॉरवर्ड सर, जैसे आप बता रहे हैं। जी, कार्डबोर्ड बॉक्स आते हैं, पैकिंग मटेरियल आता है, थैले आते हैं डिस्पोजेबल, उनको आप इमीडिएटली डिस्पोज कर दें। और बाकी जो सामान है, अगर उसको आप डिसइंफेक्टेंट के साथ स्प्रे कर सकते हैं तो करिए। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है, आप अपने सामान को घर में मंगा लें,
अगर आपको इमीडिएटली जरूरत नहीं है तो उसको 5 से 7 दिन के लिए एक ऐसे कोने में रख दें कि जहां आप उसको छुए नहीं। कोई भी वायरस 5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। बिल्कुल सर, these are very important precautions. Another caller sir is waiting on the phone line. Mukesh is calling us from Jhansi. Mukesh, hello. हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी अपना सवाल पूछे मुकेश। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि सभी मुझे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप विटामिन डी खाइए, सी खाइए, ये खाइए, तो सर लोग सब लगातार करें क्या गए तब तक कोई मॉनिटरिंग है 3-4 महीने से लोग खाए जा रहे हैं, तो मतलब इसकी पूछना है। मुकेश जी, विटामिन डी की बात कर रहे हैं? मुकेश जी एक बार दोबारा हेलो? क्लियरली सवाल पूछेगा, थोड़ी सी आवाज में आपकी क्लियरली नहीं आई है। मुकेश जी दोबारा सवाल पूछ सकते हैं? हेलो जी मुकेश। हाँ सर, ये मुझे पूछना था कि सर ये बताया गया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन के बाद मिनरल्स खाइए, तो सर इनको कब तक खाना है? लोग खाए जा रहे हैं 3-4 महीने से, मतलब क्या टाइम पीरियड है, कब तक खाना चाहिए इनको? जी मिस्टर डॉक्टर रहेजा, इफ यू कैन। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप न्यूट्रिशियस खाना खाएं, बैलेंस्ड डाइट लें, जिसमें कि सब्जियां खाएं, फल खाएं, दूध लें, पनीर लें और समय पे खाना खाएं। दूसरी चीज, नींद अच्छी लें, एक्सरसाइज रेगुलर करें आधा घंटा, और ये भी देखा गया है कि योगा का इसमें बहुत अहम रोल है। योग करें, प्राणायाम करें, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और जहां तक मल्टीविटामिन का रोल है, ये देखा गया है कि जिंक का इसमें प्रोफाइलैक्सिस में रोल है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने के लिए वायरस को रोकता है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि विटामिन D3 अगर लेवल कम है आपके शरीर में, तो भी जो ये इन्फेक्शन होगा कोरोना से वो ज्यादा होगा। तो मल्टीविटामिन आप विद इन द रेंज ऑफ नॉर्मल जो आपके प्रोफाइलैक्टिकली डोज है वो लीजिए, और एक्सेस ऑफ विटामिन लेने का इसमें कोई तथ्य नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष ने भी कई फार्मूलेज बताए हैं हमें, जिसमें कि गोल्डन मिल्क हम कहते हैं, दूध में हल्दी, गर्म दूध में हल्दी डाल के पीजिए आप, और काढ़ा जिसमें कि दालचीनी, काली मिर्च, अजवाइन, अदरक, ये सारी चीजें हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी पीते रहिए जी। और क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल जाता हूं, तो ये भी देखा गया है कि यदि आप ज्यादा ठंडी चीजें लेते हैं तो यदि ये वायरस आपके गले में चला जाता है, क्योंकि देखिए ये होती है, इसको हम कहते हैं थ्रोट हाइजीन। तो आप यदि गर्म पानी पीते रहेंगे, मैं भी हॉस्पिटल में ये थर्मस लेके आता हूँ, गर्म पानी पीता रहता हूँ जी। डॉक्टर रहेजा, तो हमारे इससे साथ भी एक और कॉलर हाई जुड़ गए हैं टेम्परेचर लातूर वायरस से, अगर बहुत शकील जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर। जी। लातूर से शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शकील, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम अपने डॉक्टर साहब से बात करना चाहता था। मैडम ERT पेशेंट हो, ERT पेशेंट को क्या हो सकता है? शुगर भी है मैडम मुझे। जी। एस्थमेटिक पेशेंट और जो है, मैडम दूसरी बात है, छोटे मोटे डॉक्टर साहब मैडम ऐसा ट्रीटमेंट के लिए गए तो मैडम पैसा बहुत लेते हैं और ट्रीटमेंट सही नहीं होता मैडम। देखिए सरकारी अस्पतालों में हेलो, कोरोना का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जा रहा है, टेस्टिंग से लेके, दवा से लेके, एडमिशन, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। और जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी कैपिंग कर दी गई है, जैसे कि जो कोविड-19 का टेस्ट है, पहले RT-PCR 4,500 पे कैप किया हुआ था, अब दिल्ली में तो इसको 2400 कर दिया आज। तो सरकार अपनी तरफ से पूरा इस बात का ख्याल रख रही है कि आपको सरकारी अस्पताल में तो पूरी सुविधा फ्री में मिले, और प्राइवेट में भी कैपिंग की जा रही है प्राइस की। तो हमें सबको मिलजुल के करना है। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति जिनको अस्थमा है, डायबिटीज है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, या ओल्ड एज है, या जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो ओबीज हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे हैं, या जिनको क्रॉनिक लंग डिसीज है, एस्थमा, COPD, या क्रॉनिक लिवर डिसीज है, या क्रॉनिक किडनी डिसीज है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जिन पेशेंट्स में, और जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये एक हाई रिस्क ग्रुप है, जिनको के मैं इस समय ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखा गया है कि ये जो हाई रिस्क ग्रुप है, एक तो इसमें कोविड-19 के इन्फेक्शन के जो सिम्टोमेटिक है, जो सीवियर फॉर्म है, उसके होने का चांसेस ज्यादा रहता है।
और ज्यादातर हमने जो मोर्टेलिटी देखी है, डेथ रेट, वो भी आज ही मैं स्टडी में देख रहा था कि मोर्टेलिटी भी इसी हाई रिस्क ग्रुप में अधिक है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 80% पेशेंट जिसमें कि जिनमें की इम्यूनिटी अच्छी है, यंग पॉपुलेशन है हमारी, उनमें सिम्टम या कम होंगे या ना ही होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल सेफ है, उनमें भी ये घातक हो सकता है। लेकिन अधिकतर देखा गया है जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें इसके लक्षण सिवियरिटी ज्यादा होती है और मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है। तो ऐसे ग्रुप को इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्टे होम, स्टे होम, स्टे होम। घर पर रहें, घर पर रहें और घर पर ही रहें। और घर में भी है, मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो यदि आपके बच्चे कहीं बाहर काम कर रहे हैं, बाहर से आते हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। प्रेफरेबली एक अलग कमरे में रहें तो ज्यादा अच्छा है। और बहुत ही जरूरी है तभी घर से बाहर जाएं, और तब भी आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी है। सोशल डिस्टेंस की 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, तो इस बात का ख्याल रखना है। फेस के ऊपर मास्क लगा के रखना है, और नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं ये कपड़े का मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जी जो अगर वो नहीं है तो आप गमछा टाइप ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर तीसरा होता है ये सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क, इसमें भी देखा गया है these कि ये precautions ज्यादा are crucial, so wearing the mask is the way forward is what we've also been telling our viewers. वर्कर्स को recommend करते हैं। Right. जी, हमारे साथ 2 कॉलर और जुड़ गए हैं डॉक्टर रहेजा। हमारे साथ सुशील जुड़े हैं इंदौर से। जी सुशील जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, जी मैं सुशील। डायबिटिक हूँ, कार्डियक प्रॉब्लम है सर मुझे। हेलो जी सुशील, दोबारा पूछेगा प्लीज। सर, मैं डायबिटिक हूँ और कार्डियक प्रॉब्लम है मुझे। जी जो मुझे शाम को ये प्रॉब्लम होती है, शाम को और रात को मुझे सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। जी हेलो? ओके जी, ओके जी। जी सुशील, और कोई सिम्टम? सर, मुझे ये डायबिटिक फुट अल्सर है और मुझे सर्जरियां हुई है, मतलब माइनर सर्जरियां हुई है, यही सर्जरियां। तो मुझे एक्स्ट्रा जी कहिए सुशील जी, आप अपना एक तो टीवी सेट का वॉल्यूम को कम करिए, उसके ऑडियो को, और तब आपका सवाल आ पाएगा ठीक से। आपने बताया कि आप जी ओके। हाँ जी, ये बताना चाहते हैं डॉक्टर खिलनानी है और कार्डियक प्रॉब्लम है। डॉक्टर खिलनानी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? ये कार्डियक और डायबिटिक। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में जो 40 साल से जो ऊपर है वहाँ 40% लोगों को डायबिटीज है। तो इतना कोई दहशत करने की भी जरूरत नहीं है। इनके जो सिम्टम्स हैं वो हार्ट से रिलेटेड हैं, जो बता रहे हैं कि शाम को उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, वो एक अलग मसला है। उसके लिए ये अपने डॉक्टर से मुलाकात करें। लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अगर आपके शुगर लेवल 200, 300, 400, 500 हो रहे हैं, उसमें रिस्क ज्यादा होती है। जो कंट्रोल्ड डायबिटीज होती है उसमें रिस्क कम होती है। तो इस समय जरूरी है कि आप अपने हार्ट की कंडीशन को और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें और सेल्फ लॉकडाउन करके रखें अगर हो सकता है, और कोई चारा नहीं। धन्यवाद। जी। और माला जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे। माला जी, अपना सवाल पूछें। थैंक यू वेरी मच। सबसे हेलो हेलो माला, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपका सवाल? हाँ, मुझे पूछना है ये फल कैसे धोएं? सब्जियां तो धो लेते हैं थोड़ा गर्म पानी से, लेकिन फल कैसे धोएं? और आम खाने के बाद में थोड़ी गले में खराश हो जाती है, तो इसके बारे में बताइए। डॉक्टर रहेजा, ये हमने डिस्कस किया था अभी, लेकिन क्या करें? सैलेड और फल, सब्जियों को आप गर्म पानी से धो सकते हैं, या आप पानी के अंदर बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, उसको डाल लीजिए और उस पानी में आप फल को थोड़ी देर छोड़ दीजिए और साफ पानी से धो लीजिए। तो इससे आपका जो फल के जो कोई भी अगर इसमें वायरस होगा तो वॉश आउट हो जाएगा। फल के लिए हम इसलिए बेकिंग सोडा का यूज रिकमेंड कर रहे हैं, या नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाई डोज में, रॉक साल्ट टाइप। तो इससे फल के अंदर उसके टेस्ट में फर्क नहीं आएगा, और उसके अंदर कोई अगर वायरस होगा तो वॉश आउट हो जाएगा। और कुछ एक मैंने देखा है, हमारे व्यक्ति हैं फल के ऊपर सैनिटाइजर लगा रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि सैनिटाइजर के केमिकल है जो यदि आप फल का सेवन करेंगे तो आपको नुकसान दे सकता है। तो प्रेफरेबली जो भी सामान बाहर से फल सब्जियां आती हैं उसको आप गर्म पानी में
बेकिंग सोडा डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए, नमक डाल के धो लीजिए। ये सबसे सुरक्षित और उच्च उपाय है। बेकिंग सोडा और जी। ऑल्सो सर एक पार्ट था कि कोई डू वी हैव टू अवॉइड एनी फ्रूट, वो आम के बारे में कुछ कह रही थी कि उनको तकलीफ होती है खाने के बाद। दूसरी चीज ये है कि यदि आपको आम खाने के बाद खराश होती है तो आपको देखना चाहिए, या तो आपको उससे एलर्जी हो सकती है, लेकिन कुछ एक फल जैसे कि पर्टिकुलरली आप मैंगो की बात मैं बताऊंगा, आम को जो पकाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये एक आप देखा होगा कि जैसे राख नहीं होती उस कलर का पाउडर होता है जो कि आम की पेटी में अक्सर रखा हुआ मिलेगा आपको। इससे क्या होता है कि आम जल्दी पक जाता है, लेकिन इसकी जो गैस है उससे कुछ पेशेंट्स को मैंने खुद देखा है कि उनको एलर्जी होती है। और ये कार्बाइड का इस्तेमाल आम पकाने में आम को पकाने में कुछ दुकानदार इस्तेमाल करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इसको बैन किया हुआ है। पपीते में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि ये मसाले से पकाया हुआ आम है तो उसका सेवन ना करें, और आप ऐसी जगह से फल खरीदें जहां पे आप ये सुरक्षित महसूस करें कि इन फलों को पकाने के लिए किसी भी मसाले का, कार्बाइड का या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। जी डॉक्टर रहेजा, एक हमारे साथ फेसबुक पे एक सज्जन जुड़े हैं, राघव सूद। उनका कहना है कि उनके पिताजी को सैटरडे से बुखार था, लेकिन कल से फीवर नहीं है, और ये फीवर 98 और उससे कम है, आज 97 है। क्या ये सिम्टम्स क्या कहते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए? देखिए, जो इस समय मौसम है, इस समय कोविड-19 तो है ही, जिसके बारे में हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना ही है, लेकिन इसके अलावा वायरल फीवर का होना, कॉमन कोल्ड का होना, निमोनिया का होना, साधारण जो वायरल फीवर होते हैं उसका अधिक होना, या रेस्पिरेटरी एलर्जीज का अधिक होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और यदि इनको अगर 2-3 दिन पहले बुखार था और अभी नहीं है तो हो सकता है वायरल फीवर हो। और दूसरी चीज है, हमें फिर भी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है कोविड के लिए। हमें उनके पेशेंट से ये हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, क्या वो किसी ऐसे जगह तो नहीं गए जहां उनको ये शक हो कि वो किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आए हों। और जो कोविड-19 है, इसकी जो टिपिकल लक्षण है, 80% में तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसमें सिर में दर्द होना, तेज बुखार का होना, उल्टी आने जैसा लगना, घबराहट का होना, जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम है उसमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, गफलत हो सकती है, और जो हाथ के नाखून हैं, पैर के नाखून नीले पड़ सकते हैं। तो ये एक रेड फ्लैग साइन हम कहते हैं। तो यदि किसी भी कोविड के पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गफलत हो रही है, चक्कर हो रही है, परसिस्टेंट हाई फीवर है, या खून में बहुत उल्टी है, खून में बलगम में खून आ रहा है, तो गफलत में जा रहा है पेशेंट, घबराहट हो रही है, तो इनको तुरंत दाखिल होना चाहिए। हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं तो ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल में तुरंत दाखिल होना चाहिए। और पर्टिकुलरली हाई रिस्क ग्रुप हम कहते हैं, जितने भी कोमॉर्बिड वाले कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं, उनको अधिक ध्यान रखना है। और यदि ये बता रहे हैं कि इनके पिताजी को 3-4 दिन से बुखार था और अब वो ठीक महसूस कर रहे हैं, तो होपफुली आई थिंक इट मे बी ए वायरल फीवर, और फिर भी एहतियात के तौर पर उनको बाकी लोगों के साथ आप मिक्स होने से अभी बचा के रखें। जी, Dr. Khilani, if I can bring an online question to you. We know with unlock, many offices are opening, people are already working from home. This question is about how to sanitize things like computer and laptop, especially if it is used by more than one person. This person is bringing in laptop from the office home and saying that things like Savlon, Dettol and water, are these good enough to clean electronic? No, they are surely good, but they are harmful to electronic things, you know. So it is better to use 70% alcohol spray, and at that time they have to be very careful to switch off the equipment. Right. Maybe a mobile phone or the computer, that should be switched off. If you put water-based material, be it soap or something, it is likely that you will spoil your equipment completely. Otherwise, any disinfectant, it could be a 1% hypochlorite, it could be a soap, it could be alcohol spray, but switch off your equipment and then clean it, let it dry and give it little time and then put it on. We all do that. That's a good advice, doctor, both for the electronic gadget and
the usage. So people have lost their mobiles by washing them over enthusiastic. Right. And डॉक्टर रहेजा, एक सवाल है, अंजना रानी है, उनका कहना है कि उनका 7 महीने का बच्चा है जिसे पिछले 4 दिन से बुखार है और ये बुखार 100 से 103 डिग्री तक रहा है और जब भी वो पैरासीटामोल दे रही हैं तो वो 98 हो जा रहा है और आज जब उसे 101 बुखार था तो उसे लूज मोशंस भी हो रहे हैं। तो क्या वो, और उनका ये भी कहना है कि वो मार्च के बाद से ये लोग बाहर नहीं निकले हैं। सबसे जरूरी बात है, 7 महीने का बच्चा है, बुखार है, लूज मोशंस हैं, तो जरूरी है कि आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन के कांटेक्ट में जाके इसका इलाज करें। छोटे बच्चे हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और ये देखा गया है कि छोटे बच्चे के अंदर एज ए फिजिशियन आई नो कि दे डिटोरेट वेरी फास्ट। तो आपको मैं ये राय दूंगा कि आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उसकी पूरी जांच करनी होगी कि एग्जैक्ट वजह क्या है, बुखार की वजह क्या है, डायरिया की वजह क्या है। और फीवर अगर क्रोसिन से कम हो रहा है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्रोसिन एक सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा है आपके बच्चे को, ये बीमारी को ठीक नहीं कर रहा। सिर्फ तेज बुखार हुआ, आपने क्रोसिन सिरप दिया, उससे उसको बुखार थोड़ा कम हो गया, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की जो इम्यूनिटी लेवल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी इस प्रकार से। तो छोटे बच्चों में पर्टिकुलरली ये जरूरी है कि आप डॉक्टर के संपर्क में जाके इलाज कराएं। और दूसरी चीज, इसके अलावा जितने भी हाई रिस्क ग्रुप हैं, छोटे बच्चे के अलावा ओल्ड एज, एल्डरली जो पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जो कार्डियक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो एस्थमेटिक्स हैं, जो क्रॉनिक लंग डिसीज के पेशेंट हैं, क्रॉनिक लीवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट्स हैं, ओबीस पेशेंट्स हैं, ऐसे व्यक्तियों में इम्यूनिटी कम होती है, दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो ये मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये यूनिवर्सल मैं एक स्ट्रिक्टली बताता हूँ कि आप डॉक्टर के संपर्क में जाके दवाई लें। और ज्यादा यदि आपको खांसी, जुकाम, बुखार ऐसे समय पे हो रहा है तो आप डॉक्टर के संपर्क में जाके अपना इलाज कराइए। सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल डॉक्टर रहेजा, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संजय प्रसाद हैं दिल्ली से। जी संजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं संजय बोल रहा हूँ। मेरा एक आप लोगों से क्वेरी है कि मैं मार्च से घर में हूँ कंटिन्यू, मैं कभी बाहर भी नहीं जाता जब से ये लॉकडाउन का इश्यू चल रहा है। और मेरे 2-4 दिन से मेरे पेट में एक प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम है कि जो मैं खा रहा हूँ तो मेरा पेट फूल जा रहा है और मुझे मतलब ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको, लूज मोशन तो नहीं लग रहे, मतलब बार बार जैसे करास आना पेट में, तो वो मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने नॉर्फ्लेक्स और आपका मेट्रोजिल लिया है जी। बेसिकली यदि आप मार्च से घर के अंदर हैं तो यानी कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये देखा गया कि यदि आप बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं तो पेट में गैस, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो यदि आप घर के अंदर भी हैं तो जरूरी है कि आप घर के अंदर थोड़ा चलें, अगर घर में चलने की जगह है तो। इसके अलावा नहीं तो आप आधा घंटा, कम से कम नहीं तो 1 घंटा, आप कम से कम आधा घंटा नहीं तो एक घंटे तक आप कुछ भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और जैसे कोई मूवमेंट होती है एरोबिक्स, डंबल, कैटल बेल्स, इंडोर आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और खाने पीने का ध्यान रखिए, यदि आप ज्यादा तला हुआ मसाले वाला खाना खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, और खाने में हाइजीन का ध्यान रखें। पानी आप आरओ करके या सुरक्षित पानी पिए अगर। और दूसरी चीज है, खाने में हल्का खाना लें, ज्यादा मिर्च मसाले तली हुई चीजें ना खाएं, और नींद पूरी लें। और यदि आप कह रहे हैं कि आपको लूज मोशंस हैं तो लूज मोशंस के इन्फेक्टिव डायरिया भी हो सकता है, और इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप एक डॉक्टर की सलाह से दवाई लें जी, और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और टेलीमेडिसिन का भी सर जैसे उपयोग कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी
कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। और हम संजय जी, अपने दर्शकों को एक बार शुभेंदु ये एक बार बता भी दें कि आप लोग अगर कोरोना इनको से जुड़े क्वेश्चन सीधे के साथ- सीधे जो आपके सवाल हैं उन्हें लेकर आप हमारे डॉक्टर से सवाल करें, क्योंकि ये 1 घंटा आपको मिलता है जहां आपके कोरोना से जुड़ी जो आपकी तमाम एक तरह से सवाल हैं या कुछ आपके शंकाएं हो सकती हैं उन्हें दूर करें आप लोग। जी, और विजय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, वेलकम टू द प्रोग्राम, अपना सवाल पूछें। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं विजय बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने दूध के बारे में बताया कि पैकेट धो के उबाल ले, लेकिन दही के लिए क्या किया जाए? चलिए डॉक्टर खिलानी बताइए कि प्रोडक्ट के बारे में बताइए, दही के बारे में। दही के लिए क्या किया जाए? फलों वलों सब्जी के बारे में समझ गए, पर दही के लिए क्या करें? दही के पैकेट के लिए? हाँ नहीं, पहले तो ये डिपेंड करता है, अगर आप दही घर में ही जमा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप दही बाहर से ला रहे हैं, किसी पैकेट में ला रहे हैं, तो आप पैकेट को सैनिटाइज करें, और जो अंदर जो दही होती है उससे आपको कोई खतरा नहीं, तो इसलिए कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है उसमें। जो डॉक्टर खिलनानी आपने आप... जी, क्या आपका कोई और सवाल भी है? जी डॉक्टर रहेजा, आप कुछ कह रहे थे। जी, बेसिकली दही आप या तो जैसे डॉक्टर खिलानी ने बताया कि आप घर पे जमाएं और दूध को उबाल के जमाएं तो सुरक्षित है। दूसरी चीज, यदि आप बाहर से ला रहे हैं तो ऐसी जगह से लाएं, पैक्ड कर्ड लाएं जो सील्ड होती है। क्योंकि आप देखिए, हम भी जो कर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल पैक्ड होती है, और उसका जो पैकेट है उसको साबुन से धो लेते हैं, और उसके बाद बड़े अच्छे ढंग से उसको खोल के उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि इस समय आप हलवाई से या इधर उधर से लूज कर्ड का इस्तेमाल अवॉइड करें। तो आप जहां से चीजें ला रहे हैं वहां पे भी थोड़ा ध्यान रखें। डॉक्टर खिलानी, some new symptoms were also added by ICMR a few days ago, along with the symptoms that we know: fever, sore throat, loss of taste and smell. If you can tell us a little more about it, sir, how does one really test it? And क्योंकि कई बार लगता है कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, so at what point should one person? देखिए, ये जो कोरोना वायरस का जो सिंड्रोम, अगर मैं उसको बोलूं सिंड्रोम है, ये जो कॉमन सिम्टम्स हम बता चुके हैं उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये एक्चुअली हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। मतलब आप हार्ट की बात करें तो हार्ट अटैक्स होते हैं, रिदमिया हो जाते हैं, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन अटैक्स, जिसको लकवा कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से शुरू में ये डायरिया नहीं का पता नहीं था, तो अब डायरिया भी होता है। और कुछ लोगों को सडनली जो है ना टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब उनको जो चीज नॉर्मली खाने को अच्छी लगती है वो अच्छी नहीं लगती, और लगता है कि अरे ये तो मिठाई थी, मिठाई में टेस्ट नहीं आ रहा, सब्जी में टेस्ट नहीं आ रहा। इसी तरह से एनोस्मिया कहते हैं उसको, मतलब जो आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो खत्म हो जाता है, और आपको जो खाते हो, जैसे अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें खा रहे हैं, आपको सेंस ऑफ स्मेल नहीं आता। तो ये सब नए सिम्टम्स जो है ना पिछले 1-2 महीने में रिपोर्ट किए गए हैं, और हमने अपने पेशेंट्स में भी ये देखें। इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि देखिए, इस समय पैनिक तो है, अब वो टेस्ट में चेंज हो जाना तो हर एक को लगता है अरे ये चीज इसमें मजा नहीं आ रहा, जो है ना, लेकिन वो जब सिम्टम होता है इतना स्ट्राइकिंग होता है कि यू कांट मिस इट। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दें। अगर आपकी सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल खत्म हो गई है तो आप उसको कोरोना नहीं माने, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो फैसला करेंगे कि ये कोरोना की वजह से हो सकता है, इसका टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये अक्सर आइसोलेशन में नहीं होते, सब्सिक्वेंटली बाकी सिम्टम, फीवर, बॉडी एक, वो भी सब आते। डॉक्टर खिलनानी, शुरुआत में आपने टेस्टिंग को लेकर एक बात कही थी कि जिस तरह से आपने कहा कि कंटेनमेंट जोन है और टेस्टिंग पे राज्यों को भी इस समय ज्यादा जोर देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब मुख्यमंत्रियों से बात की है तो उसमें भी उन्होंने इस बात पर एक तरह से इस पे तवज्जो करी। क्या तमाम वो राज्य सरकारें जो असिम्टोमेटिक के टेस्ट की न टेस्ट होने की बात कर रही हैं, वो कहाँ तक फिर ठीक है? नहीं, देखिए, अब ऐसे है कि भारत की जनता 130 करोड़ है ना, और टेस्टिंग की जो सुविधा है वो जो जितनी भी हमारी है 20,000 रोज की है, 1,50,000 रोज की है। अब आपके पास जब लिमिटेड रिसोर्स है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है किसको टेस्ट करें। अगर आप सारे अपने टेस्ट की किट्स जो है सारे एसिम्प्टोमेटिक में लगा देंगे तो जिन पेशेंट को एक्चुअली करना चाहिए टेस्ट, अब ये जो टेस्टिंग होती है ये
वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप ऐसे जगह एसिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट करेंगे जहां पर कोरोना का इंसिडेंस बहुत ही कम है, मतलब वर्जिन एरियाज है, दैट विल बी फ्रूटलेस, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे कंटेनमेंट जोन, ऐसे भी जोन हैं जहां एंटीबॉडी टेस्ट से पाया गया कि आईसीएमआर ने 30% लोग पॉजिटिव थे जब एसिम्टोमेटिक की एंटीबॉडी टेस्ट में, अगर ऐसी जगह आप एसिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट करते हैं तो आप द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आर गुड। तो ये टेस्ट मैं आपको समराइज करके बताता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जहां पर प्रिवलेंस ऑफ कोरोना कम है वहां एसिम्टोमेटिक को टेस्ट नहीं करना चाहिए। जहां पर प्रिवलेंस हाई है उसमें जो एसिम्टोमेटिक इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं जिनका फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, उनका टेस्ट करना चाहिए। तभी आप जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए। Dr. Daheja, if I can bring an online question to you. The person says, my mother is 85 years of old and has fever for the past 1 week. The fever ranges from 98 to 99. There's some medicines also been given. Body weakness and constipation are the regular symptoms. Also, the patient has a history of heart disease as well. So, does she need to worry more about this case, particularly vis-a-vis COVID? Definitely, she is 85-year-old, and secondly, she is a cardiac patient. So, she is a high-risk patient. So, I will advise you to take the patient's medicine under the supervision of a doctor. You should consult your doctor, and accordingly, they will test and decide the medication. Because if she is running low-grade fever, it can be just a mild infection. And during this season, COVID is there. She is a cardiac patient. I will tell you, because the causes of low-grade fever can be many. So, if you see during this season, commonly we see seasonal flu, viral fever, common cold, chest infections, URIs, or there can be some other infections also. So, you have to really see the exact cause of fever. And I will advise that she should be examined by a physician, and on merits the treatment should be given. जी डॉक्टर रहेजा, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गौतम है बिहार से। जी गौतम, आप अपना सवाल पूछिए। रात में क्या होता है कि कफ आ जाता है और कफ के साथ खांसी होता है, तो क्या ये कोरोना का लक्षण हो सकता है? जी डॉक्टर खिल्लानी, अगर आप ये सवाल लेना चाहें। हाँ, नहीं, पर ये डिपेंड करता है कि आपको पहले से कोई एस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की, क्रॉनिक कफ की बीमारी है कि नहीं। अगर है तो फिर तो कोई, मतलब ये उसी का एक पार्ट हो सकता है। फिर से ये कहना है कि ये अक्सर जिसको खांसी होगी कोरोना की वजह से, उसको शरीर में दर्द, गले में खराश, बुखार भी होगा। तो इसलिए अगर आपको ये सब लक्षण नहीं है और आप पहले से आपको कोई लंग की बीमारी है या एस्थमा है, तो ठीक, आप उस तरह का उसका इलाज करें। मैं ऋतु जी, शुभेंदु जी, 1 मिनट लूंगा आपको। जी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। 151 कंट्रीज में ये एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें देखा गया कि इस कोरोना के दौरान जो बाकी बीमारियां हैं, जो कोरोना नहीं है, उनका इलाज बहुत नेग्लेक्ट हुआ है। एक अमेरिका में की स्टडी आई थी कि बहुत हार्ट अटैक से डेथ्स भी बढ़ गई हैं इस दौरान। वो इसलिए कि 2 चीज, एक तो ये कि हर चीज को कोरोना के साथ रिलेट किया गया, दूसरा ये कि जो जिस मरीज को जो सिम्टम हुए कोरोना के डर से, दे डिड नॉट सीक मेडिकल अटेंशन। तो ये जो एक खौफ, एक पैनिक जो क्रिएट हुआ, स्टिग्मा वाला एस्पेक्ट भी है सर, आई थिंक। स्टिग्मा की अलग बात है, एक खौफ जो क्रिएट हुआ है, उस वजह से जो मरीज लोग हैं वो अपने सिम्टम्स को अंडरमाइन करके घर में ही बैठे रहते हैं और डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसकी दो पहलू हैं। एक तो ये कि आजकल वीडियो कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई है, जब तक लोगों का उनमें विश्वास है। दूसरा ये कि हर अस्पताल को बहुत स्ट्रिक्ट हिदायत है। जैसे जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ उसमें कोविड का जो सेक्शन है वो बिल्कुल ही अलग है और जो नॉन कोविड का है वो बिल्कुल ही अलग है। तो
अस्पतालों से इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये अदरवाइज ये जैसे हार्ट पेशेंट बता रहे हैं 85 इयर्स के ओल्ड में, अगर उनको हार्ट पेशेंट है, अगर उनको छाती में तनाव है और हल्का सा तकलीफ है, अगर वो घर बैठे रहेंगे तो सडन डेथ्स हो रही। तो इसलिए ये साइंटिफिक फैक्ट है, डेटा है। डॉक्टर खिलनानी, हर बीमारी को कोविड ना समझे। जी डॉक्टर खिलनानी, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स सामने आए हैं जिन्हें कुछ तकलीफें रही, जो आप बता रहे हैं कि कार्डियक से जुड़ी तकलीफें रही हैं, लेकिन वो लैब में जाने से डर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। तो मान लें अल्ट्रासाउंड कराना है और तमाम चीजें अगर उन्हें करानी है, या उनके जो और भी टेस्ट हैं, तो उसके लिए इस डर को आप कैसे निकालेंगे? मतलब वो क्या एहतियात बरतें? क्योंकि अपनी उम्र को देखते हुए उनको ज्यादा डर इस बात का है कि वो बाहर निकले और कहीं संक्रमित ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ बाहर जाने से वो लोग नहीं डरते, वो सोचते हैं कि हॉस्पिटल्स आर डेन्स ऑफ कोविड, कि वहां कोविड मरीज होते हैं फलाने अस्पताल, अब कोविड हॉस्पिटल हो गया तो वहां मुझे नहीं जाना चाहिए, वहां इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जो आपके जरिए ऋतु जी और शुभेंदु जी ये बताना चाहता हूँ कि हर अस्पताल, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी मरीज आता है उसको, अगर वो कोविड नहीं है, कंफर्म कोविड नहीं है, तो उसको ऐसे एरिया में रखा जाता है जहां कोविड का कोई लेना देना नहीं होता। कोविड के जो मरीज होते हैं उनका जो कॉरिडोर होता है, उनकी जो लिफ्ट होती है, उनकी जो सीढ़ी होती है, जो भी रास्ता होता है उसको ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं, उनको अलग रास्ते से ले जाया जाता है। उनकी एग्जिट और एंट्री का डोर अलग होता है। तो मैं ये 151 कंट्रीज की रिपोर्ट है, एक कंट्री की रिपोर्ट नहीं है, जिसमें कि बहुत सारी बीमारियां मिस हो गई हैं और डेथ रेट बढ़ गया। न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में हार्ट अटैक्स की डेथ रेट बढ़ गई क्योंकि लोगों ने मेडिकल अटेंशन लिया नहीं। तो इसलिए दो बात, हर बीमारी कोविड नहीं हो सकती, नहीं होती है, और बाकी बीमारियां उतनी ही हैं जितनी हर साल होती हैं। तो उन बीमारियों का भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो डॉक्टर खिलनानी ने जिस बात को कहा, हम अपने दर्शकों को डीडी न्यूज के माध्यम से भी, शुभेंदु एक बार फिर बताएं कि जिन लोगों को अगर कोविड के इतर जो भी बीमारियां हैं, और खासकर जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, डायबिटिक हैं अगर आप लोग, तो उसका आप इलाज करें। आपको सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो आप जाएं, अस्पताल जाएं। डॉक्टर खिलनानी का बहुत साफ कहना है कि ये 157 देशों का रिसर्च कह रहा है कि पिछले 3 महीने में कई ऐसी मृत्यु हुई है जहां पेशेंट्स ने अपने आप को इस डर से अपने उन तमाम सिम्टम्स को नहीं बताया है, और फिर वो मतलब और फिर उनकी मौत हुई है। COVID is not the reason for all the casualties. Sometimes we have to be careful about the comorbidities, the other diseases that we already have. Another caller, Jyoti, is on the phone line with us. Jyoti, hello. जी सर, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप डीडी न्यूज के माध्यम से हम सभी लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद मैम, काफी मायने रखता है आपकी ये बात। जी, हमारे डॉक्टर्स के लिए मतलब ये सुनना काफी अच्छा उन्हें लगा होगा, क्योंकि लगातार वो लोग आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया जैसे कि सब्जियों को कोरोना मुक्त करने के लिए उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और गर्म पानी से धोएंगे, लेकिन हमें आप ये बताइए कि कितनी क्वांटिटी पानी में और हम कितनी क्वांटिटी लें बेकिंग सोडा की, और कितना गर्म पानी होना चाहिए सब्जी धोने के लिए, और क्या हम फिटकरी भी डाल सकते हैं क्या कोरोना मुक्त करने के लिए सब्जी को? और ये सब डालने से क्या हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि हमारी सब्जियां कोरोना मुक्त हो ही जाएंगी, फल और सब्जियां दोनों? और कितनी देर लगी रहेंगी ये सब्जियां और फल पानी? ये जो वायरस है 56 डिग्री अगर टेम्परेचर है, 56 डिग्री से अधिक अगर टेम्परेचर है तो ये वायरस इनएक्टिव हो जाता है। तो आप थोड़ा सा जैसे गीजर का पानी है उससे थोड़ा कम, उस वैसा पानी अगर है तो उससे आप सब्जी धो सकते हैं। और इसको आपको सोडियम बाइकार्बोनेट वाले पानी में 5 या 10 मिनट यदि रखते हैं तो ना केवल कोरोना का वायरस, बल्कि इसके अलावा यदि कोई राउंड वॉर्म के अंडे हैं उसमें पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और बाकी अगर कोई भी उसमें बैक्टीरिया या और चीज है, कीटाणु है, तो वो भी नष्ट हो जाएगा। तो दिस इज द सेफेस्ट वे। और जैसा हम कहते हैं कि खाने का वाला मीठा सोडा तो वैसे खाने में इस्तेमाल भी करते हैं। तो दिस इज नो हार्म टेक्निक टू क्लीन योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड इट विल नॉट इफेक्ट द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस समय
कोरोना एक बीमारी तो है ही, लेकिन हमें ये समझना, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी है। बाकी की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक, एस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक लिवर डिसीज, क्रॉनिक लंग डिसीज, किडनी डिसीज और बाकी के वायरल इंफेक्शन, निमोनिया, ये सारी बीमारियां तो साथ में चल ही रही हैं। तो हमें होलिस्टिक अप्रोच रखनी है और जब भी पेशेंट्स को कोई हाई रिस्क ग्रुप है पर्टिकुलरली, ऐसे वाले पेशेंट्स को चाहिए कि वो टेली मेडिसिन का फायदा उठाएं। अभी तो ये गवर्नमेंट ने भी लीगलाइज कर दिया है, यदि आप हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, आपको किसी वजह से डर लगता है, तो आप अपनी फिजिशियन से, डॉक्टर से टेली मेडिसिन के द्वारा भी परामर्श ले सकते हैं और गाइडेंस और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बाकी बीमारियों को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि जैसे डॉक्टर खिलानी ने बताया कि मैं भी जीबी पंत हॉस्पिटल में हूं, तो मैं भी देखता हूं कि हमारे जो कार्डियक पेशेंट है, जो हार्ट की बीमारी की दवाई ले रहे हैं, जो न्यूरो के पेशेंट हैं, वो भी बीच में हॉस्पिटल आने से काफी डरते थे। तो हमने उनको ये कन्विंस किया है कि एटलीस्ट आप हमसे फोन पे मेडिसिन पता कर लीजिए, यदि आप आ सकते हैं। क्योंकि जैसे कुछ एक बीमारी है, जैसे यदि किसी का प्रोसीजर होना है, एंडोस्कोपी होनी है, कोलोनोस्कोपी होनी है, सर्जरी होनी है, तो ऐसे पेशेंट को तो हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ एक व्यक्ति, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई एस्थमा का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि वो टेली मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इसका लाभ उठाएं। अपने डॉक्टर से वो टेली मेडिसिन के जरिए भी परामर्श ले सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ कोरोना के साथ बाकी बीमारियों का इलाज भी पहले की तरह ही करना है, उनका भी उतना ही ध्यान रखना है। और सरकार ने इसलिए टेली मेडिसिन को लीगलाइज भी कर दिया है। तो हमें Absolutely. इसका पूरा लाभ Holistic approach, sir, you rightly mentioned, is crucial, and also a positive attitude. All of us are in it together, facing the challenge together. Another caller, Ravi Kumar, is with us from Jammu. Hello, Ravi. Welcome to the program. हेलो सर, थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Your question, Ravi? सर, मेरा डॉक्टर खिलानी सर से क्वेश्चन था जी। एक्चुअली मेरे ट्राइग्लिसराइड्स पड़े रहते हैं और मैं अपना जब भी ईसीजी कराता हूँ, मेरा पीआर इंटरवल, शॉर्ट पीआर इंटरवल और साथ में साइनस एरिथमिया बताता है, और साथ में अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मैं डॉक्टर साहब यही पूछना चाहता हूँ कि मैं इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊँ कि अपना कोविड का टेस्ट कराऊँ? वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी उम्र कितनी है सर? सर मेरी 29 है अभी एज। तो 29, तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, आपको कोविड वोविड कुछ नहीं है। आप कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये इसका बहुत अच्छा इलाज, जो एरिथमियाज होते हैं, शॉर्ट पीआर इंटरवल होता है, इसके बहुत एडवांस्ड इलाज मौजूद है, लेकिन इसके लिए सुपर स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत है। आप कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें, कोरोना से आपको कुछ नहीं है। धन्यवाद। डॉक्टर खिलनानी, अंत में जानना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से अगर कुछ सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को इस दौर में तमाम मुश्किलों के साथ निकलते हुए, और खासकर अब जब कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसके इतर जरूर ठीक होने की प्रतिशत भी हमारा, रिकवरी रेट भी हमारा बेहतर है, लेकिन फिर भी क्या सुझाव आपकी तरफ से? हाँ रितु एंड मिस्टर शुभेंदु, थैंक यू वेरी मच। मैं जो है ना अपना एक्सपीरियंस, मतलब हम लोग भी सीख रहे हैं, 3 महीने से 4 महीने से बिल्कुल एक्टिवली कर रहे हैं। जो मैंने आपको जो 151 देशों की बात बताई, उसका समाधान सरकार ने किया है। और मैं जैसे अपनी बात करूं तो पिछले 2 महीने से मैं रेगुलर टेली कंसल्टेशन करता हूं और काफी अच्छे नंबर में करता हूं। उसमें ये होता है कि 10 में से 1 मरीज ऐसा होता है जिसको मुझे एकदम पता लग जाता है, क्योंकि मैं उसको देखता हूं मरीज को स्क्रीन पे, कि ये मरीज टेली मेडिसिन के द्वारा ठीक होने वाला नहीं है, इसको इमरजेंसी में जाना चाहिए। तो फिर उसको मैं इमीडिएटली सलाह देता हूं कि अब आप इमरजेंसी जाएं, पास में जहां भी हो, चाहे पटना में हो चाहे कहीं भी हो। ये एक बहुत तरीका है। आप मतलब वो कहते हैं वो कबूतर जो है ना आंख बंद कर ले, वो ठीक नहीं है। आप अपनी आंख खुली रखें, डॉक्टर से संपर्क करें, फोन पे करें, वीडियो पे करें, जैसे भी करें। डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपका जो सिम्टम है वो डिजर्व करता है कि आप घर पे ही रहें, या वो डिजर्व करता है कि आप इमरजेंसी में जाएं। यही एक तरीका है
कि हम एक्सीडेंट्स को और मेडिकल मिसहैप्स को रोक सकें। Right, and we just have a minute left. Dr. Raheja, any final thoughts that you'd like to share with our viewers? सबसे जरूरी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक समय पे लॉकडाउन लगाया और उससे हम घर में रहे, सुरक्षित रहे, और अब जो है हम अनलॉकिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऐसी समय है जब हमें ये समझना है कि इस समय हमें ज्यादा सावधान और कॉशियस रहना है, सुरक्षित रहना है, लेकिन पैनिक क्रिएट नहीं करना। प्लीज पैनिक क्रिएट नहीं करना, नथिंग टू पैनिक, लेकिन सावधानी में ही हमारी सुरक्षा है जी। घर पे रहें जहां तक हो सके, हाई रिस्क ग्रुप पर्टिकुलरली जो हमने शुरू में बताया, सोशल कंटेनमेंट, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, हैंड हाइजीन, थ्रोट हाइजीन, इम्यूनिटी को अच्छा रखें, अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखें, खुश रहें, नींद पूरी लें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, बैलेंस डाइट लें और खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने कम्युनिटी को सुरक्षित रखें, अपने शहर को सुरक्षित रखें और अपने Absolutely valuable advice there, Dr. Raheja. जिम्मेदारी है, इट्स अ टीम वर्क। Yes, on that note. मिलकर कोविड-19 Absolutely valuable advice, Dr. Raheja. डॉक्टर खिलनानी, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब के साथ साथ जो सुझाव और सलाह भी आप लोगों ने दिए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने उन दर्शकों को भी कहना चाहेंगे, उन कॉलर्स को भी जिनके सवाल आज नहीं लिए गए हैं, वो कल एक बार फिर 2 से 3 के इसी वक्त में इन नंबर्स पे ही कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल एक बार फिर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ साझा कर सकते हैं। उनके जवाब In every program we learn something about how to protect ourselves from COVID-19. So please follow all the precautions. Stay safe. Namaskar. नमस्कार।